Hello everyone, welcome to all of you at Unacademy Let's Crack UPSC CSE Bilingual course. So our today's topic is Space Technology GS Paper 3. But before going to start the actual topic, I would like to say something to you about the entire program. So now UPSC is a long-term examination and hardly very few students crack this examination. Therefore, I have some suggestion for everyone. So first of all, know about me. Myself, K. Mukesh Singh, 16 years of teaching experience, BSc Geology Honours. Appeared in UPSC main examination, produced more than 30 final results in IAS and IFOS. And my approach is focused and exclusively for the civil services. So in my teaching career, I taught more than 50,000 students, almost, in terms of general study science tech. And what I have got it, the experience, those I am going to share with you through this platform. But before going to start all these things, first know about all the faculty. So at this platform you will get more than 100 top educators, and to get subscription you have lot of options. So there is a 1 month, 3 months, 6 month and 12 month. According to me, took a subscription of at least 24 month because UPSC is a long term examination. एंड मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि इसका जो प्रिपरेशन है वो हार्डली कोई बच्चा होगा, स्टूडेंट्स है जो पहले प्रयास में इसको क्वालिफाई करता है। इस सब्सक्रिप्शन से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वन थिंग इज दोज हु आर द बिगिनर्स and took the either 12 month or 24 month subscription, then he got a regular test, doubt clearance session, PDF notes, complete coverage of syllabus, and most important thing is the multiple educators and mentors at a single platform on same subject. Remember it, on same subject, and by that you will in the position to interact in real time. Besides it's आप यहाँ से डाउनलोड वीडियो को भी कर सकते हो और उस वीडियो को आप लोग ऑफलाइन देख सकते हो। ये भी इसका एक बड़ा सा बेनिफिट होगा। तो देयरफॉर माय सजेशन इज टू नॉट वेट, बेटर you can watch all my course. For that you need to enroll today for 1 or 2 years and get one subscription to access unlimited videos, unlimited notes, and for that you need to remember my subscription code MKS1, and when you are subscribing with my code you will get 10% off. So let's start the topic and today's discussion topic. Today's discussion topic is the space technology, and what actually I am going to discuss. तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे अबाउट व्हाट इज स्पेस, स्पेस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, कार्बन लाइन, वैन एलन बेल्ट, गोल्डीलॉक जोन्स, इंडिया स्पेस प्रोग्राम एंड इट्स अल्टीमेट गोल, structural and institutional setup of India's space program. Most of you heard about space, but very few people know about what is Van Allen belt, Goldilocks zones, and Kármán line. The reason is, एक तो भाई आप लोग जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं जनरली उन्हीं बच्चों को पता होता है। स्टेट पीएससी में भी लोग कई दफ़ा तो पढ़ाते भी नहीं हैं। और दूसरा ये है कि बुक्स में इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, एंड यूपीएससी के पास यही वो कॉर्नर्स बनता है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें भी
आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये भी देखना होगा। इवन स्टूडेंट्स फेसिंग प्रॉब्लम इन डिस्क्राइबिंग व्हाट इज स्पेस, स्पेस है क्या, इसको भी डिस्क्राइब करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। ऑब्जेक्टिव अगर मैं कहूँ तो आपसे जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, आप जब मेरे वीडियो सुन रहे हो, यू जज योर सेल्फ, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और अगर मैं कहता हूँ व्हाट आर द चैलेंजेस, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स, if you are not memorizing or remembering the challenges or knowing about the challenges till the moment you will not get the information those are the relevant for the UPSC। तो चलो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा बल्कि इसके साथ मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ऑन द सेम टॉपिक ऑन एवरी पॉइंट and every bit of information I will also gives you through the questions or the test। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग जो बात करेंगे तो सबसे पहला हम लोग व्हाट इज स्पेस। स्पेस क्या है बेसिकली, स्पेस इज एन एम्प्टी प्लेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और प्लैनेट और स्टार्स और प्लैनेट एंड स्टार्स और डिस्टेंटली प्लेस टू बॉडीज। स्पेस एक खाली स्थान होता है तो किसी भी बॉडी के बीच में, तो किसी भी प्लैनेट के बीच का, तो किसी भी स्टार्स के बीच का। जैसे मैं हूँ और तुम हो, तुम जहाँ से मुझे सुन रहे हो और मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, तो जो गैप हमारे तुम्हारे बीच में है, या तुम जहाँ पे बैठे हुए तुम्हारा दूसरा दोस्त कहीं बैठा हुआ है, तुम्हारे ही पास में बैठा हुआ है, पर तुम्हारे तुम दोनों के बीच में जो खाली जगह है, तो दैट आर द स्पेस। और दिस इज द एवर बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस। अब स्पेस जब हमने कहा तो इन अर्थ रेफरेंस स्पेस बिगिंस फ्रॉम वेयर, अर्थ के रेफरेंस में अंतरिक्ष का शुरुआत कहाँ से होता है। तो थिंग्स आर रिटन हियर, स्पेस बिगिंस वेयर अर्थ एटमॉस्फेयर एंड्स। स्पेस का शुरुआत तो वहां से होता है जहां पे जाकर के अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर समाप्त हुआ और स्पेस का शुरुआत हुआ। स्पेस का शुरुआत का मतलब है अर्थ का एटमॉस्फेयर का समाप्त होना। और दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एटमॉस्फेयर समाप्त होता कहाँ पे है। अब एटमॉस्फेयर समाप्त अगर आप पृथ्वी से जब ऊपर जाते हो तो व्हेन वन रीचेज एट द हाइट ऑफ 62 माइल्स, ग्रेजुअली जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होगा, थिन होता जाता है। जब 62 माइल पे पहुंचते हो तो वो क्या हो जाता है, वहां पे समाप्त हो जाता है। और ठीक उसके बाद स्पेस का स्टार्ट होता है। बगल में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और द लाइन दैट डिमार्केट्स आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस इज कॉल्ड कार्बन लाइन। आप यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको देख सकते हो यहाँ पे, देयर इज हियर, तो दिस इज बेसिकली द कार्बन लाइन। मैं यहाँ पे, तो ये कार्बन लाइन है ये, द लाइन दैट डिमार्केट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस और कार्बन लाइन। मे दे आस्क क्वेश्चन अबाउट कार्बन लाइन, तो रिमेंबर आप इसको याद रखो आप सब लोग। अब दूसरा हमारे पास सवाल बनता है यहाँ पे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कैसे प्रोटेक्टेड है, 62 माइल तक ही है और कैसे प्रोटेक्टेड कैसे है, एंड व्हाई अर्थ ओनली अर्थ हैज सच ए ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर के होने का फायदा क्या है। देखो ये जो एटमॉस्फेयर है ये और भी किसी प्लैनेट पे रहा होगा, बट दैट प्लैनेट हैज नॉट वेल एलन बिल्ट। और अर्थ पे ये का जो है यहाँ पे ये बिल्ट है, और इसको आप समझ सकते हो स्लाइड से। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट गोल्डीलॉक्स जोन, अबाउट वैन एलन बिल्ट। पहले समझते हैं हम लोग वैन एलन बिल्ट के विषय में, फिर हम लोग बात करेंगे गोल्डीलॉक्स जोन के विषय में। तो यहाँ पे एक इमेज है,
ये अर्थ का डायग्राम है ये। और अर्थ के जब आप ऊपर में जाते हो, अर्थ से के जब ऊपर में आप जाते हो, तो आप एटलीस्ट 500 किलोमीटर के हाइट पे एक ये जो रेड कलर का जो पट्टी देख रहे हो आप लोग, ये उसके नीचे येलो कलर का एक पट्टी है, उसके नीचे ग्रीन कलर का पट्टी है, देख रहे हो ना? ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एक बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है ये, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का नाम है वैन एलन बेल्ट। और ये जो फील्ड है अभी मौजूदा स्थिति में दो है, बीच में भी 2013 के आसपास में एक और फील्ड बना था, उसका नाम था, वो भी वैन एलन बेल्ट, वो 3 था। और अभी जो मौजूदा है इसमें हमारे पास 2 वैन एलन बेल्ट हैं, और ये बेल्ट जो यहाँ पे है दीज आर द इनर, और जो सबसे बाहर में ये जो देख रहे हो लाइन, दीज आर द आउटर। अब इनर जो है अर्थ के सरफेस से ये 500 किलोमीटर के हाइट पे है, और जो आउटर है ये 58,000 किलोमीटर के हाइट पे है। दो बातें क्लियर हो गया, इनर वैन एलन बेल्ट क्या है और आउटर वैन एलन बेल्ट क्या है। ये एक मैग्नेटिक बेल्ट है जो दो है, one is the inner and other is outer. Inner is lies at the height of 500 km from the Earth's surface, and outer lies at the height of 58,000 km from the Earth's surface. अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बेल्ट कैसे बना हुआ है, जो वैन एलन बेल्ट है दोनों, ये बना कैसे? इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय सोलर विंड। ये सोलर विंड से बना हुआ बेल्ट है ये। और इस बेल्ट में होता क्या है, ये एक्चुअली रेडिएशन बेल्ट है या मैग्नेटिक बेल्ट है, या इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो चार्ज पार्टिकल के कारण क्या, इसका एडवांटेज क्या है? तो बिल्कुल ये चार्ज पार्टिकल का एक बेल्ट है, और इसका एडवांटेज ये है कि जो बाहर से स्पेस तो बहुत बड़ा यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे स्पेस में देयर आर सो मेनी डिफरेंट बॉडीज हैं, कॉस्मिक बॉडीज हैं, और उस कॉस्मिक बॉडी से जो हार्मफुल रेडिएशन या कोई अदर विंड अगर हमारे तरफ आता है, तो दिस बेल्ट रिटर्न देम बैक। वो बेल्ट उसको परमिट नहीं करता है कि वो अर्थ के तक पहुंच सके। और अब जब वो कोई भी चीज हार्मफुल जो है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे अर्थ के लिए, वो जब नहीं पहुंच पाता है, तो इसी के कारण क्या है, पृथ्वी के आसपास में 62 माइल्स के सर्कमफरेंस में क्या है, एटमॉस्फेयर मौजूद है। जिस दिन ये बेल्ट टूट गया उसके बाद यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो बन सकता है कि आवर एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्टेड बाय, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा क्या, वैन एलन बेल्ट। और एटमॉस्फेयर क्यों है अर्थ पे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि वो फील्ड उसको पकड़े हुए हैं, दैट्स वाई एटमॉस्फेयर फाउंड। और ये बेल्ट बाहर से प्रोटेक्ट किया हुआ है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर इस हिसाब से है हमारे अर्थ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को चीज और आना चाहिए, सर गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? तो गोल्डी लॉक जोन यही वो लॉक जोन है जो एटमॉस्फेयर हमारा है, ये परमिट करता है यहाँ पे लाइफ को। और जब लाइफ वहीं पे हो सकता है जहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और लाइफ के लिए जो नेसेसरी गैसेस हैं लाइक द O2, लाइक द CO2, ये गैसेस वहाँ पे हो, मीथेन है, ये गैसेस वहाँ पे होना चाहिए। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में तभी प्रिवेल करेगा जब वहाँ पे चाहे वो टेम्परेचर हो, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। जो कम होगा टेम्परेचर तो फ्रीज कर जाएगा, ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वेपराइज हो जाएगा। टेम्परेचर न एक्सट्रीम होना चाहिए, न एक्सट्रीम चिल हो, न एक्सट्रीम वार्म होना चाहिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जो वाटर को लिक्विड फॉर्म में सस्टेन करने में हेल्प करता हो, जहाँ पे लाइफ फॉर्मिंग गैसेस हो जो लाइफ को सपोर्ट करता हो। तो अ प्लानेट और बॉडी, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकता है, दैट हैज ऑल दिस पैरामीटर्स,
जिसके पास ये सारा पैरामीटर ऑप्टिमम है and that support life, so that zone are called Goldilocks zone. And because Earth has or support life, Earth has water in liquid form, and there is O2, CO2 and methane present in the Earth atmosphere, and therefore Earth has Goldilocks zone. तो गोल्डीलॉक्स जोन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। जिस भी प्लैनेट के पास ये स्थिति होगी, यहाँ पे 3 कंडीशन, वाटर लिक्विड फॉर्म में, दूसरा गैसेस होने चाहिए जो लाइफ सपोर्ट करता हो, चाहे वो O2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे मीथेन हो, और टेम्परेचर न ज़्यादा होना चाहिए न टेम्परेचर कम होना चाहिए। और जिस भी प्लैनेट के पास, जिस भी बॉडी के पास अगर ये तीनों कंडीशन है, तो दैट बॉडी और प्लैनेट हैज गोल्डीलॉक्स जोन। उसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। जिस जोन में मौजूद होता है उस जोन क्या कहेंगे? गोल्डीलॉक्स जोन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। So now the biggest thing is, what is the objective of space technology? तो स्पेस टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मी, we have 3 broad objectives in general. First one is to observe space, second is to use the space, and third is to explore the space. So to observe space means what? It means how can we see further into space. To use the space, it means what? To establish effective communication system. To observe the Earth for better management of resources and to fulfill the civilian needs and strengthen the defense. तो अर्थ पे हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको सैटेलाइट बेस्ड करना चाहते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम को हम इफेक्टिव इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि जो गवर्नेंस है वो इफेक्टिव हो सकेगा, रियल टाइम इंटरेक्शन हो सकेगा। आज जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बन पाया है तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया हुआ है, एंड नाउ आई एम टीचिंग यू एंड यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दैट। इसलिए संभव हो पाया है कि हमने संचार को बेहतर यहाँ पे स्थापित किया है। टू ऑब्जर्व, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, टू ऑब्जर्व द अर्थ फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भाई हम अंतरिक्ष में क्यों जा रहे हैं? और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज द अर्थ, एंड फॉर मैनेज द अर्थ वी नीड व्हाट? वी मस्ट वॉच द अर्थ फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, ऑल द साइड्स। हम अर्थ को देख सकें सही से, बिकॉज हम पृथ्वी पर रहकर हम पूरे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। आप जहाँ पे बैठे हुए हो, अगर मैं कहूँ आप वहाँ से अपने घर को देखो या घर से अपने होम डिस्ट्रिक्ट को दिखाई दे रहा है तो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ नॉट अलाउ अस, देयर इज सो मेनी बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स, दिस ऑब्स्टिकल्स नॉट अलाउ अस टू लुक, एंड देयरफॉर वी नीड सैटेलाइट्स। अगर सैटेलाइट होते तो हम देख सकते हैं, आज हम पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट ने हमें ये एबिलिटी दिया कि हम दुनिया को देख सकें, हम अर्थ को देख सकें, हम अपने देश को देख सकें, हम अपने सिटी को देख सकें, हम अपने गांव और खेतों को देख सकें। जब आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि कितना आपके पास फॉरेस्ट एरिया है, कितना आपके पास एग्रीकल्चर एरिया है, कितना आपके पास डिजर्ट एरिया है, कितना आपके पास कोस्टल एरिया है, all these things, when you are observing, it enables you to make a solid master planning. And when a planning based on observation, assessment of the resources, that definitely work in their implementation, their executions, उसको आप इम्प्लीमेंट सही से करोगे, सही से एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि आपने रिसोर्स को प्रॉपर्ली एलोकेट कर लिया है। और तब जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग डेफिनेटली वर्क करेगा, और तब आपका जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का, 10 ईयर 20 ईयर प्लान का, वो ऑब्जेक्टिव अटेन हो पाएगा, जिससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जिससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, जिससे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं,
There are so many other things. Once you start observing that, you are able to manage and establish ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. आप इसको टाउन प्लानिंग में यूज कर सकते हो, फ्लड मैनेजमेंट में यूज कर सकते हो. आप साइक्लोन है, नेचुरल हैजार्ड्स हैं, उसको मैनेज करने में आप इसको यूज कर सकते हो. इसके अलावा जो पाइपलाइन है, गैस लाइन है, वाटर लाइन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेल है, इन सबको आप इस्टेब्लिश कर सकते हो. और उसका जो प्लानिंग होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा. एंड थर्ड इज टू इम्प्रूव एवरीडे ह्यूमन लाइफ. तो यही सब तो हो रहा है. ऑल दिस व्हाट आई सेड, ऑल द थिंग्स आर फॉर होम, फॉर ह्यूमन बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ना. आदमी के जीवन को ही अच्छा करने के लिए हम काम कर रहे हैं ना. और आदमी खुद भी अपने जीवन को और अच्छा, और कंफर्ट, और कंफर्ट, और कंफर्ट, जितना पॉसिबल कम लेवल ऑफ कंफर्ट है, तो आदमी इसीलिए सारी चीजों को क्रिएट किया हुआ है. एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर मैनिपुलेटिंग द फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम इनटू बायोटिक. तो जब जिसको हम बायोटिक नहीं बना सकते हैं उसको हम एबायोटिक में ही मैनिपुलेट करते हैं. पर मैनिपुलेट हम जरूर करते हैं फॉर आवर बेटरमेंट. इसका एक और जो पार्ट क्या है वो डिफेंस पार्ट है. और वो पार्ट क्या है, वो मिलिट्री बेनिफिट उससे होगा. क्योंकि आज हमारे जितने भी डिफेंस आर्टिलरीज हैं, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो रडार हो, चाहे वो कोई बैटलफील्ड टैंक हो, चाहे वो कोई पिनाका जैसे मल्टी लॉन्चर्स हो, हमारा टैंक से लेकर के मिसाइल तक सबके सब सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन पे लिंक कर दिया गया है. और इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज बीनीथ दिस स्पेस टेक्नोलॉजी. इस सबके अलावा सबसे और जो बड़ा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, और वो काम है बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी, कीपिंग आई ओवर द टेररिस्ट, कीपिंग आई ओवर द एनिमीज. चाहे वो कोस्टल एरिया हो उसका मैनेजमेंट करना हो, चाहे वो अदर बॉर्डर एरिया उसका मैनेजमेंट करना हो. और विद इन नेशन कोई नक्सल एक्टिविटी है उसको करेक्ट करना हो, या वट एवर द challenges or threat of our internal security as well as external security, so all these things will be maintained by this. And third is to explore this space. It means how can we send people to Mars and return them safely to the Earth. Mars पे, Venus पे, अदर जो भी हमारे पास प्लानिट हैं, हम चाहते हैं वहां पे लोगों को भेजना. कल हो हम ये भी चाहेंगे कि भाई आउटर सोलर सिस्टम में लोगों को भेजना है. कंटिन्यूअसली हमारा एफर्ट है, डार्क मैटर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डार्क एनर्जी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. ऐसे प्लानिट का हम कंटिन्यूअस सर्च कर रहे हैं कि दोज आर मिनरल रिच, दोज सपोर्ट द लाइफ, दोज हैव द वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड देयर वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ. क्योंकि अर्थ पे जो प्रॉब्लम है ग्रेजुअली क्या है बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और अनसाइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज. And all these parameters enforce us to move and look towards the other planet. And this is the one of the reason behind why we are looking towards the other planet. तो हमें इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना कि हम दूसरे प्लानेट की तरफ मूव करें, हम उधर जाएं. और हम सिर्फ अभी चूंकि हम इनिशियल फेज में हैं, अभी स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, और स्पेस एक्स मैन मिशन कर रहा है. इसरो ने भी प्लान किया हुआ है इंडिया का भी मैन मिशन करें. शटल से आप देखे होंगे कई सारे स्पेस साइंटिस्ट को स्पेस स्टेशन में ले जाया गया. तो अब मान लो हम किसी को हम स्पेस में ले जाए और लाने की तैयारी नहीं होती, ये भी तो अच्छा नहीं है. फिर स्पेस में कोई जाना ही नहीं चाहेगा. स्पेस
वर्ड से चीज और जो मेरे दिमाग में आ रहा है कहो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बता दूं। अब एक सवाल मेरे मन में ये है कि बताओ स्पेस क्या है और तुम कहाँ पे हो? तुम अर्थ पे हो कि स्पेस में हो? अगर तुम स्पेस में नहीं हो, तुम अर्थ पे हो, तो तुम गलत हो। अगर तुम स्पेस में हो और अर्थ पे भी हो तो अब तुम सही हो। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसको है। तो नेक्स्ट इज दैट challenges of space technology. So what are the challenges? The first is the absence of atmosphere, extreme temperature, strong magnetic field, space rocks, micro and zero gravity, space debris or space waste, perturbations such as solar wind, radiation pressure, variation in the earth gravitational field and gravitational effect of the sun. Challenges की बात कर रहा हूँ, and without knowing the challenges, no any students can really enjoy the space technology. चैलेंज जितना बड़ा होता है उतना ही हमें उसमें मजा आता है। यूपीएससी बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, तो तैयारी करने में मजा आ रहा होगा। शराब कड़वा होता है पीने में, तो लोगों को पीने में मजा आता है। अगर मीठा बना दे शराब को तो कोई पिएगा नहीं। शरबत नहीं पीता है लोग, जूस नहीं पीता है लोग, शराब जरूर पीता है। जूस की दुकान पर भीड़ नहीं होती, शराब की दुकान पर भीड़ होती है। यूपीएससी में भीड़ है, करवा यूपीएससी ज्यादा भीड़ हो गया है अब, पहले इतना नहीं था। तुम लोगों का नसीब ही खराब है, क्या करोगे, कितने भीड़ में आप लोग आए हो। और आपके लिए एक और अच्छा बात यह हुआ कि आप जम के मेहनत करके और फटाफट फर्स्ट और सेकंड, हार्डली सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लो। तो जितना डिले करोगे उतना ही चैलेंज बढ़ता जाएगा। और यू नो वन थिंग, एवरी न्यू जनरेशन इज मच मोर इंटेलिजेंट देन द ओल्ड जनरेशन। तो आप लोग के बाद जो जनरेशन आ रहा है वो आपसे तेज होगा। और ये क्यों होता है तो मैं बताऊंगा बायोटेक में। आप लोग पढ़े होगा हाइब्रिड वीगर, every previous generation is more advanced than the earlier generation. तो ये सब बताएंगे उसमें क्या होता है, आगे बताएंगे। यहाँ पे हम लोग स्पेस में ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि चैलेंजेस जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा मजा आएगा टॉपिक में। तो चैलेंज ऐसे स्पेस में जाओगे तो सबसे पहला कि एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर है ही नहीं। दूसरा एक्सट्रीम टेम्परेचर, स्वाभाविक है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग है वहाँ पे। स्पेस में रॉक्स भी घूम रहे हैं, जैसे आप लोग देखते नहीं हो कहीं पे यहाँ पे मेटेराइट गिर गया या मेटेराइट टकराने वाला है, पृथ्वी का अंत होने जा रहा है, बस आज या कल अंत हो ही गया, इस तारीख को अंत हो जाएगा, इस तरह की घटनाएं पड़ती रहती ना। तो व्हाट आर दिस? स्पेस रॉक्स ही तो हैं। माइक्रो और जीरो ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वहाँ पे नहीं है, तो ग्रेविटीलेसनेस है वहाँ पे। स्पेस में डेब्रिज भी हैं जो मूव कर रहा है अर्थ के अलग अलग ऑर्बिट में। एंड परटर्बेशन सच एज सोलर विंड, मैंने कहा परटर्बेशन का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग। हमारा सेटेलाइट अपन जिस काम के लिए हम वहाँ पर ले गए हैं, तो वहाँ पे जो सोलर विंड है इसके कारण क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होते रहता है। रेडिएशन का प्रेशर कारण डिस्टर्बेंस पैदा होते होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड है, चाहे वो सन का हो, चाहे अर्थ का हो, चाहे अदर किसी प्लानट का हो, so that could create some sorts of disturbance and deviation from the actual path of movement or working of this satellite. डेब्रिज से क्या चैलेंजेस? डेब्रिज का ये बार टकरा जाता है, टक्कर होने से क्या होगा, वट एवर द फंक्शनल सैटेलाइट दैट बिकम डिफंक्शनल, काम कर बेकार हो जाएगा। और स्पेस में वेस्ट भी तो है, ये डेब्रिज धीमे धीमे जो देख रहे हो, जो आपने जो मान लो ये कोई रॉक्स हैं और उससे हमारा कोई फंक्शनल या नॉन फंक्शनल जो भी सैटेलाइट है स्पेस में जिस भी ऑर्बिट में है, अगर वहाँ पे उससे टक्कर हुआ, कॉलिजन हुआ, तो टक्कर होने के बाद क्या होगा, वो जो सैटेलाइट है वो और टूटेगा, वो टूट करके फिर और टूटेगा, फिर टूटेगा, फिर और टूटेगा। और इस प्रकार से
टूटने का जो ये जो सीक्वेंस है ये चल पड़ेगा, and this tendency of breakdown of larger object into the smaller and smaller into the smaller and smaller into the smaller is called Kastler syndrome. इसी को हम बोलते हैं कैस्लर सिंड्रोम, और जेम्स कैस्लर वाज फर्स्ट हु ऑब्जर्व्ड इट, and on his name it is named Kastler syndrome, tendency of breakdown of a heavy object into the small and small into the micro. और इस तरह से स्पेस में जो डेब्रिज है वो बढ़ते ही जा रहा है। अब मान लो डेब्रिज बहुत ज्यादा हो गया, उछल लियो में है, पूरा लियो एकदम से डेब्रिज से भरा पड़ा है, और वैसे में हम कई तरह से इस डेब्रिज को हम भी बढ़ाते हैं। एक तुम सेटेलाइट बार बार भेज के बढ़ा रहे हैं, रॉकेट जो बार बार भेज के बढ़ा रहे हैं। अब डेब्रिज होता क्या, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पूरा वीडियो ही इस पे है, स्पेस डेब्रिज एंड स्पेस बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट पे। माइक्रो जीरो ग्रेविटी आप लोग समझ चुके, स्पेस रॉक समझ चुके। सो दीज ऑल दीज आर द चैलेंजेस इन स्पेस, एंड whenever we are going to plan to launch vehicles or rocket into the space, we must keep all these challenges in view, and then we will then we will launch them. लॉन्च करने से पहले हमें देखना होगा, इन सारे चीजों को, इन कंडीशन को फुलफिल करना होगा, and then we will launch it. So next is India's space program, and I will discuss it later on that. Thanks, bye. And don't forget to subscribe, and my code is MKS1. So just you need to watch, subscribe and enjoy. Thanks, bye.